नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, हाल ही में बैंकिंग इंडस्ट्री में 12th बाइपर्टाइट साइन हुआ है और उसके साथ ही एक्स ग्रेशिया भी पेंशनर्स के लिए एग्री किया गया एमओयू में और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। 12th बाइपर्टाइट में कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जो कि रेजिडुअल इशूज़ में रखी गई हैं, जैसे कि 5 डे बैंकिंग है और पेंशन अपडेशन है पेंशनर्स के लिए। तो इन कुछ ज्वलंत मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारतीय मजदूर संघ द्वारा अभी हाल ही में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को अपना एक पत्र लिखा है। ये पत्र संख्या है BMS/C21/110/2024। ये लेटर है 10 अप्रैल 2024 का और ये श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। रिस्पेक्टेड सिस्टर नमस्कार। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की हार्दिक शुभकामनाएं। वी होप दिस लेटर फाइंड्स यू in good health and spirit. You are well aware of the public sector bank employees are committed to economic development of the country, moving shoulders to shoulder with the Prime Minister's resolve for Sabka Saath Sabka Vikash. Honorable Prime Minister admired the bankmen for their role in achieving total financial inclusion. You have also applauded bankmen on different occasions. The decision to improve wage and service condition amicably without any space for bitterness and in shortest time has definitely motivated bankmen and instilled belief that hard work and dedication never go waste, and that right now there is a government that takes care of their aspiration. ये उन्होंने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में थोड़ा सा तारीफ की है सरकार की। In settling complex issues like wage revision and improvement in service condition, we find no suitable word to commend the role played by Shri M.B. Rao, Chairman of the Negotiation Committee. He has delivered the best deal of optimum satisfaction to banking and its staffers. Ma'am, growth is not one-side story. Growth of human resources and banks is complementary to each other. It must go together. Only this can keep the pace of development at desired level. If this spirit is maintained and future settlement are reached beforehand, we think it will be widely welcomed. जैसे कि आपको मालूम है कि ये सेटलमेंट काफ़ी स्पीडली हुआ है और हालांकि इसमें DFS के डायरेक्शन के बेसिस पे ही हुआ, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का डायरेक्ट इंटरवेंशन था। इसलिए इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को धन्यवाद दिया जा सकता है। There are certain problems which this government inherited from earlier government like NPAs and would have played havoc with PSB had this government not infused fresh capital worth several lakhs crores. We seek your very personal attention to those inherited issues given below, with an urge to resolve them soon to smoothen the future industrial relations. First point है इसमें पेंशन अपडेशन, पेंशन रिफॉर्म। ये अपडेशन ऑफ पेंशन has been pending for 37 years and has caused much dismay to retirees and the worker alike. We request that the government should resolve in our get out of court as has been done in the RBI matter. In the joint note dated 8th March 2024, it has been agreed to insert specific clauses for periodical pension revision with pay revision in pension regulation within 6 months. We request that this should be done scrupulously within the stipulated time and pension be updated on RBI line. तो जैसे कि आपको मालूम है कि EFBU द्वारा IBA के साथ जब MOU साइन किया गया तो उसमें पेंशन अपडेशन को रेजिडुअल इशू में रखा गया है और ये कहा गया है कि विद इन 180 डेज इसको भी रिजॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन ये देखा गया कि पास्ट में भी जब रेजिडुअल इशूज़ चलते रहते हैं तो वो
उस स्टिपुलेटेड टाइम में रिजॉल्व नहीं होते हैं। तो इसलिए बीएमएस द्वारा इस लेटर के द्वारा इसको हाईलाइट किया गया है कि जैसे एमओयू में 6 महीने का टाइम लिया हुआ है, तो उसी 6 महीने के दौरान यदि अपडेशन का इशू आरबीआई की लाइन में हो जाए तो वो सबसे अच्छा रहेगा। बी पॉइंट में पेंशन स्कीम इन द बैंक was formulated in 1995 as per the Central Pension Rules (RBI pension scheme). Since many reforms have taken place in the Central Pension Rules and RBI pension scheme after 1995, we request that those reforms may please be done in bank पेंशन स्कीम ऑल्सो। सो इस तरह से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के और आरबीआई के पेंशन रूल्स में चेंजेस की गई हैं और उसको बार बार अपडेट किया जाता है, उसी ढंग से बैंकिंग इंडस्ट्री में भी पेंशन रूल्स को अपडेशन लागू किया जाए। अगला पॉइंट, रिव्यू ऑफ एक्स ग्रेशिया एज एग्रीड on 8th March. The ex gratia amount is to be reviewed in April 2024. It is but for your initiative, pensioners got ex gratia relief, but the amount have been very meager. It deepened dissatisfaction. It needs improvement. Pending pension updation, DA may please be allowed on ex gratia amount. This will ameliorate the condition to सम एक्सटेंट। इसमें उन्होंने एक्स ग्रेशिया का अमाउंट काफ़ी कम बताया और उसमें डीए को शामिल करने की बात करी है, जो कि एक रीजनेबल कॉज है। थर्ड पॉइंट में उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ पेंशनर्स कवर किया है। बैंक्स हैव बीन इग्नोरिंग द हेल्थ ऑफ पेंशनर्स एज पर द खंडेलवाल कमेटी रिपोर्ट 2010। द डीएफएस इशूड लेटर नंबर F24/7/92-IR Volume 2 dated 24th February 2012 to IBA. While allocating the welfare fund, it has been advised that health insurance of working and retired both can be provided from the welfare fund. Khandelwal committee recommended 25% of the welfare fund to be spent on health of रिटायरीज। दोस्तों, ये वाली जो रिकमेंडेशन थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और इसके बेसिस पे यदि हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी रिटायरीज के लिए हो जाती है तो जो हैप्टी इंश्योरेंस प्रीमियम अभी देना पड़ रहा है वो नहीं देना पड़ता, क्योंकि ये जो वेलफेयर फंड से 25% देने की बात है उसी से काफ़ी सब्सिडी मिल जाती है, जिससे कि रिटायरीज के हेल्थ इंश्योरेंस के कॉस्ट उनको स्वयं नहीं बेयर करनी पड़ती, बल्कि वो बैंक के वेलफेयर फंड से ही हो जाता। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशूज है और जिसको बड़ा समराइज वे में हाईलाइट किया है बीएमएस द्वारा। बैंक्स हैव बीन कंप्लीटली इग्नोरिंग द डीएफएस लेटर एंड खंडेलवाल कमेटी रिपोर्ट। आउट ऑफ 7,70,000 pensioners, only 1,20,000 pensioners have got health insurance at their own cost. 6,50,000 pensioners are without health insurance. Please advise bank to provide minimum health insurance to all pensioners. Fourth point उन्होंने कवर किया, last option for pension or remaining retirees. Some of 100 or 200 people unfortunately could not take a pension option. They are languishing under extreme financial distress. They should be given the last chance for pension option. दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी हाल ही में रिजाइनीज के लिए भी MOU साइन किया गया था और उनके लिए स्कीम डिवाइस की गई है। उसी ढंग से जो 2010 में पेंशन के ऑप्शन नहीं ऑप्ट कर पाए थे किसी कारण से, उनको या उनके स्पाउसेस को भी एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। रिजाइनीज की जैसी पॉलिसी उनको भी एक मौका दे देना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि अभी तक ज़्यादातर इशूज़ रिटायरीज से संबंधित थे या पेंशनर्स के इशूज़ थे, क्योंकि इनको अभी आईबीए और यूएफबीयू ने रिजॉल्व नहीं किया। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ के लिए है वो है 5 डे बैंकिंग का, और इसमें उन्होंने 5th पॉइंट में कवर किया है। दिस मैटर इज़ अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। वी रिक्वेस्ट दैट द गवर्नमेंट शुड गिव permission to implement 5 day banking
ये उन्होंने इस लेटर में ऐड कर दिया। 5 डे बैंकिंग जो कि बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और इसके लिए भी MOU साइन कर दिया गया है 8 मार्च 2024 को, और उसमें 6 महीने के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने की भी बात की गई है। उम्मीद की जाती है कि 5 डे बैंकिंग का भी इलेक्शन के बाद जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। वी अर्नेस्टली सीक योर बेनाइन इंटरवेंशन in the above referred issues to resolve them at the earliest possible and give relief to bank workers and retirees. Respectful regards. Yours brotherly, Grishan Arya, All India Secretary and in charge Finance Sector. दोस्तों, इस लेटर को काफ़ी पॉलिश्ड वे में लिखा गया है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि श्री गिरीश आर्या जी ने फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को रिस्पेक्टेड सिस्टर से एड्रेस किया है, और जो लेटर के एंड में उन्होंने यूवर्स ब्रदरली से संबोधित किया है। इससे ये लगता है कि उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से इसको ड्राफ्ट करवा करके और अच्छे जितने भी बैंकिंग के इशूज़ हैं उनको एक लॉजिकल मैनर में एड्रेस किया है। मुझे ये लगता है कि बैंक पेंशनर्स और बैंकर्स की जो अपनी डिमांड्स हैं उनको मनवाने के लिए साम दाम दंड भेद ये सभी नीतियों को अपनाना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रकार की अच्छी रणनीति है कि जो भाजपा की जो केंद्र में सरकार है उसके जो पॉलिटिकल विंग है और जो फाइनेंस सेक्टर के इंचार्ज हैं BMS के, उनके थ्रू ये लेटर लिखा गया है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस लेटर का कुछ ना कुछ असर ज़रूर होगा। हालांकि काफ़ी पेंशनर्स इंडिविजुअली और काफ़ी पेंशनर्स का ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से लेटर लिखते रहते हैं, लेकिन उन लेटर्स का कितना असर होता है सरकार पर ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक ये पॉलिटिकल और जो इसके भाजपा की PMS यूनिट है वो एक कड़ी है एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के बीच में, और जो कि सरकार के साथ जोड़ती है, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, बैंक पेंशन के बारे में या इंश्योरेंस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।